Hello students, let's start chapter number 4, multiplication of numbers. In this chapter, we are going to learn different properties of multiplication, multiplication by 10, 100 and 1000, multiplication by 10, 20, 30 up to 90, multiplication of two-digit number by one-digit number, then multiplication of two-digit number by one-digit number with carry, multiplying three-digit number and four-digit number with carry, and multiplying two-digit number by two-digit number and multiplying three-digit number by two-digit number. And last is word problems on multiplication. Let's start the chapter. Fill in the boxes. यहाँ पर हमको 54 को 0 से मल्टीप्लाई करना है. हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा 0 आता है. आंसर विल बी 0. Now 43 into 43 multiplied by 10. 43 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. वी विल गेट 430. 136 मल्टीप्लाइड बाय 1. जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम नंबर एज प्रोडक्ट. 6 4 जा, इसके लिए हमें टेबल रिमाइंड करनी होगी. 6 4s आर 24. 25 6. 25 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है. ये हम आगे चैप्टर में सीखेंगे कि टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स डू इट. 6 5 जा 30, 3 carry, 6 2 जा 12 and 3 15. So answer is 150. In the chapter we are going to learn about this further. 0 zeros are 0. Then 149 into 3 हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. ऐसे ही 274 into 5 will also be studied in chapter. This is multiplication fact. There are how many fours? 1 2 3 4 5. So what we will do? 4 into 5 we will get 20. Multiplication indicates how many times a number is added to itself. Multiplication का मतलब एक नंबर कितनी बार ऐड हुआ है. It is actually repeated addition. इसको हम repeated addition भी कहते हैं. जैसे यहाँ पर 3 + 3 + 3 + 3 3 ही बार बार ऐड हुआ है. That gives the answer 12. और इसको हम लिख सकते हैं कि 3 को हमने 4 बार ऐड करा है. So we will write here 4 into 3 is equal to 12. This is the multiplier, this is multiplicand and this is product. The answer we get is known as product. Multiplier is, it is the number by which another number is multiplied. Multiplier वो नंबर होता है जिससे हम दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं. Multiplicand, it is a number that is being multiplied. और multiplicand वो नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर 3 है. और product, it is the result of the multiplication. Let's start the properties of multiplication. Let us revise the properties of multiplication learned in the previous class. The product does not change when the order of the numbers is changed. अगर हम दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसका जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो सेम ही आएगा. जैसे 6 7s are 42 and 7 6 are also 42. इसका मतलब 6 multiplied by 7 and 7 multiplied by 6 is same. Property 2. The product of a number and 1 is the number itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द नंबर एज द प्रोडक्ट. जैसे 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर 6 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट और अगेन गेट द आंसर 6. ऐसे ही किसी टू डिजिट नंबर को भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम नंबर. प्रॉपर्टी 3. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट द आंसर 0. Like 7 zeros are 0 and 0 into 12 are 0. Let's start the exercise. Write the multiplication fact for the following. इन सभी के लिए हमें multiplication fact लिखने हैं.
काउंट द नंबर ऑफ फोर्स, 1 2 3 4 5 6 6। 4 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा है? 6 बार। कितनी बार ऐड करा है? 6 बार। सो द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इज 6 is multiplied by 4. Answer is 24. जब आप इन सबको प्लस करोगे you will get the answer 24 only. 5 plus 5 plus 5, 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा है? 5 टाइम्स. So we will get the answer 25. 10 को कितनी बार ऐड करा है? 4 टाइम्स. We get the answer 10 multiplied by 4 is 40. Fill in the boxes. Question number 2. 12 fours is 48. इसमें मल्टीप्लिकेंट क्या है? मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इज द मल्टीप्लिकेंट. 9 4s are 36. इसमें 4 इज अगेन मल्टीप्लिकेंट. 9 7s are 63. प्रोडक्ट क्या है? 63. एंड 6 5s are 30. तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 से. तो 6 इज द मल्टीप्लायर. राइट द मिसिंग न्यूमरल्स. ये आपको टेबल के बेसिस पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं. 5 9s are 5 9s will be equal to 9 5s are and 9 5s are 45. मतलब ये यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. अगर हम इंटरचेंज भी कर दे डिजिट्स को तब भी आंसर सेम ही रहेगा. 3 7s are 21. सॉरी, यहाँ पर आएगा 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम आंसर 21. 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें या we will get the answer 28. And 1 6 are 6. 6 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, we get the same answer. 5 6 are 30 and 6 5s are also 30. Fill in the boxes. 2 3s are 6. 3 3s are 9. ये आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल के बेसिस पे सारे बॉक्सेस फिल करने हैं. 4 5s are 20. 4 4s are 16. 3 7s are 21. 4 6 are 24. 2 8s are 16. 8 की टेबल में 48 कहाँ पर आता है? 6 टाइम्स. 8 6 are 48. और 4 की टेबल में 20 कहाँ आता है? 5 टाइम्स पे. 4 5s are 20. Now we will learn about multiplication by 10, 100 and 1000. जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1 इज टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 10, प्लेस अ जीरो एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर और एनेक्स अ जीरो टू द नंबर. अगर हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो हमें क्या करना है? उस नंबर के आगे सिर्फ जीरो लगा देना है. जैसे 16 10 is multiplied by 16, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से. We will only put 0 after 16. We will write 16 and put 0. ऐसे ही 10 को जब हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 38 के बाद 0 लगा देंगे. 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हम एज इट इज डिजिट उतारेंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे. रूल सेकेंड इज जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे? उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा देंगे बिकॉज 100 के पास 2 जीरोज होती हैं. ऐसे ही 17 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी 1700 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी 600. नाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1000. अब हमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करके लेना है तो हम 3 जीरो लगा देंगे किसी भी नंबर के आगे. जैसे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 6000 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज 7000. हमने 6 और 7 के आगे 3 जीरो लगा दिए हैं. मल्टीप्लीकेशन बाई 10 20 30 अप टू 90. जब हमें इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो जैसे 10 20 30 तब हम कैसे करेंगे? To multiply a number by 10 20 30 up to 90, multiply the number by 1 2 3 4 up to 9 and annex a 0 to the product. तो हमें क्या करना है? सिर्फ उसे जो उसकी टेंथ प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके आगे एक जीरो लगा देना है. जैसे 70 और 20 का मल्टीप्लीकेशन है तो हम 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 इंटू 2 7 इंटू 2 is 14. 7 2s are 14.
और फिर जो 7 के पास एक 0 है वो हम लगा देंगे और 2 के पास एक 0 है वो हम लगा देंगे, तो आंसर विल बी 1400। ऐसे ही 76 को जब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 76 एज इट इज लिखेंगे। 76 1 जा, वी विल मल्टीप्लाई 76 1, 76 1 इज 76 और 10 की एक 0 हम आगे लगा देंगे। 60 इंटू 15, जब हमें 60 इंटू 15 करना है तो हम पहले सबसे पहले 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर 90, और फिर 90 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट द आंसर 900। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें 22 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो वी विल सिंपली राइट 22 और आगे एक 0 लगा देंगे। अब हमें 20 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 26 और फिर उसके आगे एक 0 लगा देंगे। 50 इंटू 15, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर 75 और आगे एक 0 लगा देंगे। देन 63, तो हम 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 18 और हम 0, वी विल पुट 0 एट द एंड, आंसर विल बी 180। एंड फिर इन द बॉक्सेस 17 इंटू 100, यहाँ पर दो 0 है तो हम 17 के आगे दो 0 लगा देंगे। ऐसे ही 19 को जब 100 से मल्टीप्लाई करना है वी विल सिंपली पुट 00 आफ्टर 19। सिमिलरली 22 के आगे भी हम यही करेंगे, 33 के आगे भी यही करेंगे, तो 33 इंटू 100 विल बी 3300, और ऐसे ही बाकी के दो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी, अब हमें मल्टीप्लाई करना है एक 2 डिजिट नंबर को एक 1 डिजिट नंबर से जिसमें अभी कैरी इन्वॉल्व नहीं है। 43 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम वंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6। उसके बाद जब हमने वन प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वंस प्लेस पे हमने 6 लिख दिया, फिर हम टेंस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8, तो आंसर विल बी 86। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, so 5 1s are 5 and 5 1s are 5। सबसे पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करा फिर 10 से, so we will get the answer 55। 2 3s are 6, 2 1s are 2, so we will get answer 26। 4 2s are 8 and 4 1s are 4, 48। 3 2s are 6 and 3 2s are 6, we will get the answer 66। 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तरीके से आप बाकी की भी सम करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर 10 से। देन मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरी, जब यहाँ पर कैरी इन्वॉल्व हो, हमें 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, 45 लिखेंगे ऊपर और फिर 4 नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम वंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 आर 20, 4 5 जा कितने होते हैं 20, तो हम ये जो 2 है क्योंकि 20 में हमारे पास टी टेंस प्लेस पे क्या है 2 और वंस प्लेस पे 0, तो वंस प्लेस पे हम 0 लिख देंगे और टेंस प्लेस वाला जो 2 है वो हम 10 के पास ले जाएंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4, हम सब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा, 4 4 जा 16, 16 में ये जो 2 कैरी आया था इसको हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट 18, तो आंसर विल बी 180। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। 16 7 जा, 7 6 जा कितना होता है 42, तो 42 में हम वंस प्लेस पे 2 है, वी विल राइट हेयर 2, और टेंस प्लेस पे 4 है तो इसको हम कैरी ले लेंगे। 7 1 जा 7 और फिर 7 में हम 4 प्लस कर देंगे, वी विल गेट 11, आंसर विल बी 112। 4 8 जा 32, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे, 4 1s are 4 और फिर 3 प्लस कर देंगे उसमें 72, 3 5s are 15 और 1 यहाँ पर ले जाएंगे, 3 2 जा 6 और 1 75, 7 4s are 28, 8 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे, 4 2 जा 8 और 8 में 2 प्लस करेंगे, वी विल गेट
108. Then 5 3s are 15, 1 carry, 5 3s are 15 और 1 carry 165. ऐसे ही आप रिमेनिंग सम्स करेंगे. Then multiplying 3-digit number and 4-digit number by 1-digit number. अब 3-digit number और 4-digit number को हम करना सीखेंगे मल्टीप्लाई 1-digit number. 342 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 14. जब हमें 14 मिल जाएगा, वंस प्लेस पे 4 लिख देंगे और टेंस प्लेस पे कैरी ले जाएंगे 1. फिर हम 7 4 सा मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 जा 28. जब 28 मिल जाएगा, 28 में हम 1 ऐड करेंगे, वी विल, ये कितना हो जाएगा 29. तो वंस प्लेस पे क्या है अब 9 और 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा. 7 3 जा 21 और उसमें 2 कैरी करेंगे, वी विल गेट 23. का मेथड सेम रहता है, बस फर्क इतना है कि अब 100 और 1000 प्लेस ऐड हो जाएंगे. अब 4 डिजिट नंबर को हमें सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले हम वंस प्लेस को करेंगे. 4 3 जा 12. 12 में वंस प्लेस पे क्या है 2, तो वी विल राइट 2 और 1 कैरी. 4 5 जा 20. 20 और 21, एक कैरी भी थी इसलिए 21. तो 1 प्लेस पे हम, सॉरी 10 प्लेस पे हम 1 लिख देंगे और 2 100 2 पे ले जाएंगे. 4 2 जा 8 और 8 और 2 कितना हो गया 10. तो 0 हम यहाँ पे ले आएंगे और 1000 प्लेस पे 1 ले आएंगे. 4 1s are 4 और 1 कैरी 5012. दिस विल बी द आंसर. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.5. 4 3s are 12. 4 3 जा 12 होता है, तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगी. 4 4 जा 16. 16 में 1 कैरी करेंगे 17. 17 का 1 यहाँ पर चला जाएगा. 4 1 जा 4 एंड 1 5. आंसर इज 572. 2 9s are 18. 1 यहाँ पर ले जाएंगे. 2 5s are 10. 11. 11 का 1 यहाँ पर ले जाएंगे. 2 2 जा 4 एंड 1 5. आंसर इज 518. Now 3 4s are 12. 1 कैरी. 3 8 जा 24 और 1 25. 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगी. 3 0 जा 0. यहाँ पर 0 आ गया और 0 में फिर हम 2 प्लस करेंगे. 0 प्लस 2 2 आ जाएगा. और 3 3 जा 9. 6 9 जा 54. 5 कैरी. 6 3 जा 18. 18 में हम 5 प्लस करेंगे, वी विल गेट 23. 2 कैरी. एंड 6 3 जा 18. 19 20. 10 2 carry. 6 1 जा 6 and 2 8. Answer will be 8034. Question number 2 is write the missing numerals. इसमें हमें जो न्यूमरल्स मिसिंग है उसको फिल करना है नीचे प्रोडक्ट से अंदाजा लगाकर. जैसे 5 3 जा 15. जब हमने 5 3 जा 15 किया तो इसका 5 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ एक कैरी आ गई होगी. तो हम देखेंगे कि 5 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिससे कि जब हम उसमें 1 प्लस करें तो वहां पर 6 आ जाए. तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15 फिर से करेंगे. जब 5 3 जा 15 करेंगे, 15 प्लस 1 इज 16. तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर हम यहाँ पे 1 कैरी ले लेंगे. अगेन 5 3 जा 15 और 1 16. सो वी विल गेट द आंसर 1665. सेकेंड ट्राई करते हैं. 4 4 जा 16. यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगी. एंड 4 6 जा 24 और 1 25. जब यहाँ पर 5 कैरी आ जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 हो जाएगी कैरी. तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 प्लस करने के बाद नीचे आंसर 10 आ जाए. तो हम यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 2 जा 8 और उसमें हम प्लस करेंगे 2 कैरी. तो वी विल गेट 1056. 5 6 जा 30. 0 यहाँ पर और 3 कैरी. अब यहाँ पर नीचे भी 3 लिखा है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें 5 को जिससे कि नीचे यहाँ पर 3 आ जाए. तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 5 0 0 और 0 में हम 3 प्लस करेंगे तब हमें
3 मिलेगा कैरी, 3 आंसर मिलेगा। तो और आगे फिर 5 5 जो 25, आंसर विल बी 2530। 9 2 जा 18, 1 कैरी, और रेस्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 6 जा 54, 1 5, रेस्ट इज सॉल्व्ड। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। अभी तक हम 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट को सिर्फ एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 22 बाई 2 वंस। सबसे पहले हमें 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आंसर क्या मिला, 44। हियर 44 इज द फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। ये पार्शियल प्रोडक्ट मतलब अभी हमें आधा ही प्रोडक्ट, आधा ही आंसर मिला है इस क्वेश्चन का। मल्टीप्लाई 22 बाय 1/10। अब हमें क्या करना है, इस 22 को अभी पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करा था, अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 221। क्योंकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 1 2 जा 2, क्योंकि आप 10 वंस को 2 1 सॉरी 10 टेंस को 1 टेंस को 2 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप 10 के कॉलम में ही तो लिखोगे आंसर, तो यहाँ पर आप 0 लिख दोगे। 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2, so you will get the answer 221। अब हमारे अब हमें सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट मिला। ये हमारा एक प्रोडक्ट था 44 और एक प्रोडक्ट हमारा 220 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 44 और 220 को। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर 264। लेट्स डू द फॉलोइंग। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लेट्स स्टार्ट। 34 इंटू 79। सबसे पहले हम वंस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 आर 36, 3 कैरी, 9 3 आर 27 30। अब हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं या क्रॉस भी लगा सकते हैं। 7 4 आर, अब हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 आर 28, 2 कैरी हो गई, 7 3 आर 21, 22 23। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 8 6 एंड 2, तो आंसर विल बी 2686। इसी तरीके से हम दूसरा सम भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। सेकेंड वन इज 51 इंटू 51। सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जार 5, 1 5 जार 5। उसके बाद हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, तो आंसर विल बी 5। और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 5 और 5 10, then 1 6 और 2, आंसर विल बी 2605, 2615। 2605। ये आप अपनी नोटबुक में करके देखेंगे। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। 16 इज मल्टीप्लाइड बाई 27। सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, यहाँ पर 4 कैरी आ जाएगी। 7 1 जा 7 और 4 कितने हो गए, 11। फिर हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल पुट क्रॉस एयर। 2 6 जा 12, एक कैरी हो जाएगी यहाँ पे, और 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 2 3 एंड 4, तो आंसर विल बी 432। लेट्स ट्राई द बी पार्ट। 3 3s are 9 and 3 4s are 12, तो यहाँ पर हम पूरा ही 12 लिखेंगे, यहाँ कैरी नहीं लेंगे। देन 5 3s are 15, यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। 5 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ पहुँच जाएगी। 5 4s are 20 और ये 21। फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 9 7 2 एंड 2, आंसर इज 2279। ये दोनों सम भी इसी तरीके से होंगे। मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर।
ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने 2 डिजिट को 2 डिजिट से करा है। पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन टेंस को और फिर 100 को। सबसे पहले हमें 247 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल गेट 5, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, एंड 5 4 जा 20, विल गेट 3 और 2 कैरी, 5 2 जा 10। तो हमारा जो आधा आंसर है वो है 1235। 247 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, अब हम 247 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल गेट द आंसर 2470। फिर 1235 और 2470 को हम प्लस कर लेंगे इस तरीके से, तो वी विल गेट द आंसर 3705। लेट्स ट्राई दीज सम्स। 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 1s are 2। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी विल पुट 0 और आप यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं। 1 2s are 2, 1 4s are 4 and 1 1s are 1। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 4 10, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगी, 3 and 4 7 and 1। आंसर इज 1704। 0 9s are 0, 0 को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर 0 ही मिलेगा। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगी, 2 7 जा 14 एंड 1 15। अगेन यहाँ पर कैरी आ जाएगी, 2 1 जा 2 एंड 3। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 0 8 5 3 इज द आंसर। लेट्स ट्राई द जी पार्ट। 3 6 are 18, we will get 1 carry, then 3 9 जा 27, 27 में एक कैरी किया 28, फिर यहाँ पर 2 कैरी हो गई, 3 1 जा 3 and 2 5। 2 6 are 12, 1 कैरी, अगेन 2 9 are 18, 19 हो गया यहाँ पर, फिर 1 कैरी हुई, 2 1 जा 2 and 3। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 8 10, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगी, 9 और 6, फिर कितना होता है 15, और यहाँ पे 1 कैरी 4। आंसर विल बी 4508। इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स डू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। देयर आर 36 पर्ल्स इन अ नेकलेस। एक नेकलेस में 36 मोती हैं। हाउ मेनी पर्ल्स विल बी देयर इन 176 सच नेकलेसेस। 176 नेकलेसेस में कितने टोटल मोती होंगे। तो एक नेकलेस में कितने मोती हैं 36, और हमें कितने नेकलेसेस में पता लगाना है 176 में। तो हम 176 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, सो वी विल गेट द आंसर 6336। लेट्स डू द एक्सरसाइज। इफ अ पैकेट हैज 52 बैलून्स, हाउ मेनी बैलून्स विल 24 सच पैकेट हैज। एक पैकेट में कितने बैलून्स हैं 52, और 24 पैकेट्स में कितने होंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। तो वी विल हमको प्लस कर देंगे। वी विल गेट द आंसर 8 4 2 and 1। टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं 1248। वी विल मल्टीप्लाई 52 बाय 24। हम नेक्स्ट करके देखते हैं। अ बॉक्स हैज अ डजन एग्स। एक बॉक्स में डजन एग्स है। एक डजन में कितने होते हैं 12। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में नंबर भी ना दे रखा हो 12, तो आपको समझ जाना है डजन मतलब 12। अ बॉक्स हैज अ डजन एग्स। हाउ मेनी एग्स डू 35 सच बॉक्सेस है। अगर एक बॉक्स में 12 एग्स हैं, एक डजन एग्स हैं, तो 35 बॉक्स में कितने एग होंगे। तो हम क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, या आप उल्टा भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 1 कैरी, then 5 1 जा 5 and 1 6। तो हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3। आंसर विल बी 12 and 1 420 eggs।
47 children sent 20 new year cards each. How many cards did they send in all? 47 children ने 20 नए साल के कार्ड बेचे, नए साल के कार्ड भेजे। तो टोटल कार्ड्स कितने भेजे गए? तो हम इसमें क्या करेंगे, 47 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप क्या कर सकते हैं, 47 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी 94 और इसके आगे आप 0 लगा देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स will be 940 कार्ड्स। A wooden almirah cost rupees 675. Find out the total cost of 1 dozen such almirah. एक अलमायरा की कॉस्ट 675 है, आपको 1 डजन अलमायरा, 1 डजन मतलब 12 अलमायराज की कॉस्ट पता लगानी है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। A man buys 36 bananas for his monkeys every day. How many bananas does he buy in a month? एक आदमी अपने बंदरों के लिए रोज 36 बनानास खरीदता था। एक मंथ में वो कितने बनाना खरीदेगा? तो जब भी एक मंथ की बात हो तो आपको हमेशा 30 डेज लेना है। अगर आपको नंबर दे भी नहीं रखा हो तभी भी आपको 30 डेज लेना है। तो आप क्या करोगे, सीधे आप 36 इंटू 3 भी कर सकते हो। 3 6 या 18, 1 कैरी, 3 3 या 9 एंड 108, 1080 और आप 0 लगा दोगे। आंसर विल बी 1080 bananas. With this, the chapter ends here. Thank you for watching.